इतना बड़ा कैपेसिटर बनाएं। तो हम क्या करते हैं, बजाय इसके कि हम ये इतना बड़ा ट्रांसफार्मर बनाएं, ये कैपेसिटर बनाएं, इस तरह हम उनकी एक रिप्रेजेंटेशन बना देते हैं कि भाई जो ट्रांसफार्मर है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ पावर ट्रांसफार्मर, we represent it with the help of this symbol. Similarly, potential transformers or the voltage transformers that are shown here, they are represented by this symbol. Similarly, जो capacitors हैं, the capacitors are represented by this symbol. So whenever you will find out this type of symbol in your single line diagram, you will surely understand that this is a capacitor placed here. Similarly, these are the disconnect switches. Why disconnect switches are placed there in the substations? Why disconnect switches are there? The disconnect switches are basically used to disconnect a circuit or a live circuit from the live grid or the main grid. So ये disconnect switches क्यों, किस पर्पस के लिए यूज होते हैं? ये जो disconnect switches हैं, ये सर्किट ब्रेकर से पहले लगे होते हैं। अगर आप ग्रिड स्टेशन में एंटर हो तो आप चले ना एंटर हो, लाइन जब एंटर होती है ग्रिड स्टेशन में, तो सबसे पहले एक फिल्टर आता है जिसको हम लो पास फिल्टर कहते हैं, और आफ्टर पासिंग फ्रॉम द लो पास फिल्टर, वन आर टू फेजेस ऑफ अ लाइन passes from a low pass filter. तीनों फेजेस लो पास फिल्टर से पास नहीं करते, लो पास फिल्टर से एक या दो फेजेस पास करते हैं ट्रांसमिशन लाइन के। तो ये उसके बाद जो तीनों फेजेस हैं ये चले जाते हैं डिस्कनेक्ट स्विचेस में एंटर होते हैं। तो डिस्कनेक्ट स्विच से पास करने के बाद ये एंटर हो जाते हैं सर्किट ब्रेकर में, ये सर्किट ब्रेकर बने हुए हैं। तो डिस्कनेक्ट स्विच का पर्पस इस तरह का होता है, सर्किट ब्रेकर इज जस्ट लाइक अ स्विच। पावर सिस्टम के अंदर या ग्रिड स्टेशन के अंदर जो सर्किट ब्रेकर्स लगे होते हैं, इसको आप बिल्कुल ऐसे एज्यूम करें जैसे आपने एक पेडिस्टल फैन चला रखा हो और उसका जो शू है वो आपने सॉकेट में इंसर्ट किया हो। जो सॉकेट है वो आपके पास डिस्कनेक्ट स्विचेस हैं, फाइन। और जो बटन है जहाँ पे आपने उस सॉकेट के अंदर एक आपके पास जहाँ पे आप शू इंसर्ट करते हैं एक वो जगह होती है और साथ एक बटन होता है। वो जो बटन है, वो बटन का पर्पस कौन सर्व करता है? वो सर्किट ब्रेकर करते हैं। और जो सॉकेट के अंदर जो शू का पर्पस फुलफिल कर रहे होते हैं वो डिस्कनेक्ट स्विचेस कर रहे होते हैं। मतलब अगर आपने एक पेडिस्टल फैन ऑन कर रखा है, अगर आपको कोई कहता है कि इस पेडिस्टल फैन को जाएं ऑफ कर दें, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले वो जो बटन जहाँ पे वो शू लगा हुआ है वो सॉकेट के ऊपर, पहले आप उस बटन को ऑफ करेंगे। वो बटन का ऑफ करना बेसिकली काम है, समझें, पावर सिस्टम के अंदर सर्किट ब्रेकर वो काम करता है। बटन ऑफ हो गया, आपका जो पेडिस्टल फैन है वो ऑफ हो गया उस बटन के ऑफ करने से। अच्छा, लेकिन फिर भी यू विल नॉट फील सेफ, और एनी एल्डर पर्सन इन योर होम, he or she will say to you, no, 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 don't pick up the pedestal fan, don't carry it with the wet hands, don't basically touch this pedestal fan with the wet hand. Maybe you have, maybe you will feel some earth or ground, something like that. So before doing any adventure with that pedestal fan placed somewhere, they will advise you to basically remove the shoe from the socket as well. So to ensure utmost security safety standards, therefore the disconnect switches are placed there in the grid station as well, like the shoe inserted in the socket. So the purpose of button is served by the circuit breakers, and the purpose of that shoe or the socket is served by this disconnect switches. So the disconnect switches, when they are disconnected, there is no connection between the conductors of the grid station and the live conductor that is basically entering inside the grid station. So after getting disconnected, these switches are apart from each other. So as they are apart from each other, now there is no chance of any current
or any voltage or any power uh, out of or above or forward of this location. So therefore the disconnect. So if we want to basically represent this disconnect switches in a single line diagram, we represent this with the help of this symbol. Similarly, the circuit breakers are represented with the help of this symbol. The generators and motors are represented with the help of this generator, this symbol. Now we also have current transformers in the grid stations and in the power systems. In power system, the current transformers are installed at grid stations, and here are the current transformers that you can see. And the purpose of these current transformers are basically uh, for the measurement purpose. They are basically used in the grid station for measuring the value of current in the transmission line. So therefore they are used in the power system. And if you want to represent the current transformer in the power system as well, then you will have to represent it with the help of this symbol. The reactors are represented with the help of this symbol, which is normally an inductor symbol. And if you are trying to basically represent the grounding in the system, then that will be represented by this ground symbol. Again, what are the bus bar? Single line diagram has different components, bus bar, buses in a single line diagram. So you may have listened or you may have heard about a bus bar. Uh, Now I will basically draw here the bus bar and you will understand what actually the bus bar is. Practically, the bus bars are like that. You can see this rod. This is a bus bar. You can see this bar. This is a basically bus bar. So how bus bar is represented in a single line diagram? I am basically drawing it for you here, so you can easily understand what actually the bus bar is. Now see, I have already drawn the single line diagram of an assumed power system. This is, now see, this is the representation of the generator, this box. This is the represent, as I have already told you while explaining the symbols of various components, there a generator is represented by this symbol. So this representation basically is of generator, and this one bar that you are basically seeing here in this figure, this bar, this is known as bus bar. Fine. This is bus bar. So the generators are connected with the bus bar. Similarly, when I have drawn the Rawat grid station, it was drawn like that. Fine. The load was like that. One line was entering, for example, from here. One line was coming from here. So again, this is the Gawad grid station and it is represented by a bus bar. The lines that are entering and the line and the load that is leaving, or the line, those are leaving Lahore. So a grid station, a generator, all these basically components, a generating station, they are represented by a bus bar in a power system.
So bus bar, what is bus bar basically? Bus bar is basically a combination of bus bar, on the bus bar, different lines that are coming entering into the grid, that are basically come on a symbol bus bar, and the lines that are leaving the grid, here inside we have a grid, these are the disconnect switches. This is circuit breaker, this is transformer, again we have circuit breakers, again this is a bus bar. So at and so there is a bus bar. So when we draw a power system, we ignore all component side. We, for simplicity, we basically draw a single bus bar for each power plant or for each grid station, and we assume that all these devices to be ignored because we have to simplify the system. And whatever is happening here, for example, this is a grid station, and it is basically stepping down the voltage from 220 to 132. So we just simply write this thing 220 by 132 by the side of the bus bar instead of basically drawing this whole grid station. So this 220/132 means that this is a grid station which is basically stepping down the voltage from 220 volt to 132 volt. So this is the bus bar. So therefore, in this case, or in this way, the bus bars are represented in a power system. सर आपने इन दोनों बस बार्स के दरमियान जनरेटर यूज किया है या ट्रांसफार्मर यूज किया है स्टेप अप? And just a minute, just yes, front. Kindly ask your question again. सर आपने इन दोनों बस बार्स के दरमियान में ट्रांसफार्मर यूज किया है स्टेप अप करने के लिए या जनरेटर भी लगाया हुआ है आपने? देखिए, स्टेप अप करने के लिए कभी भी जनरेटर यूज नहीं होता. जनरेटर इज ऑलवेज यूज फॉर जनरेशन. स्टेप अप करने के लिए वी ऑलवेज यूज transformers. Fine. So there is no generator inside the grid station. The generators are placed at the generating stations. ठीक है? समझ आई बात आपको मेरी? यस सर वो आपने जनरेटर का सिंबल बनाया था, इस वजह से कंफ्यूजन हुई थी. जनरेटर का सिंबल मैंने बस बार्स के दरमियान में नहीं बनाया, बस बार के साथ बनाया था, और वो जो बस बार थी वो जनरेटिंग स्टेशन की बस बार थी. दो बस बार्स के दरमियान जो सिंबल बने थे उनमें मैंने एक डिस्कनेक्ट स्विच का बनाया था, एक मैंने सिंबल बनाया था सर्किट ब्रेकर का, और जो एक सिंबल था वो मैंने बनाया था ट्रांसफार्मर का. उसके बाद फिर मैंने सर्किट ब्रेकर का सिंबल बनाया था और फिर उसको जाके मैंने कनेक्ट कर दिया था बस बार के साथ. मैंने ये कहा था कि ये जो दो बस बार हैं, कोई भी जो ग्रिड स्टेशन होता है
उसकी एंट्रेंस पे भी एक बस बार लगी हुई होती है और उसकी एंड पे भी बस बार होती हैं। जब वो लाइंस उसमें एंटर होती हैं किसी ग्रिड स्टेशन में, तो वो बस बार के थ्रू एंटर होती हैं, और जब लाइंस लीव करती हैं किसी ग्रिड स्टेशन को, तो वो भी बस बार के थ्रू लीव करती हैं। समझ आ रही है बात? अब लाइंस एंटर हुई ग्रिड स्टेशन के अंदर और लाइंस लीव कर गई ग्रिड स्टेशन के अंदर से, लीव कर गई ग्रिड स्टेशन से, तो ये ग्रिड स्टेशन में क्या करने आई थी लाइंस? ग्रिड स्टेशन में क्या होना था? ग्रिड स्टेशन में बेसिकली वोल्टेज ड्रॉप होना था, ये वोल्टेज को स्टेप डाउन करना था। अब एक्सक्यूज मी सर, जब वोल्टेज को स्टेप डाउन करना था तो ग्रिड स्टेशन के अंदर वोल्टेज को स्टेप डाउन किया, लेकिन पावर के ऊपर कोई ऐसा इफेक्ट नहीं आया, क्योंकि जितनी पावर ग्रिड स्टेशन के अंदर आई उसी ने लीव किया। पावर के साथ आपने कुछ नहीं किया, यू जस्ट ओनली यू हैव डन व्हाट यू हैव डन इज दैट कि आपने वोल्टेज को स्टेप डाउन कर दिया ग्रिड स्टेशन में। अब पावर सिस्टम अगेन एक बहुत बड़ा एंटिटी है, एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। अब यू कांट अफोर्ड के आप जनाब दो बसेस बनाएं कि एक बस जो है वो एक्सक्यूज मी आप उसकी सर, एंट्रेंस के लिए दिखाएं और एक बस जो है वो आप उसको लीव करने के लिए दिखाएं। तो हम क्या करते हैं पावर सिस्टम के अंदर, बजाय इसके कि वो दो बसेस दिखाएं कि ग्रिड स्टेशन के लिए, हम एक ही बस शो करते हैं। और क्योंकि दरमियान में हुआ क्या होता है, उन टू बसेस के दरमियान में क्या हुआ होता है, उन टू बसेस के दरमियान में स्टेप डाउन हुआ होता है वोल्टेज। तो वो स्टेप डाउन की जो इन्फॉर्मेशन है वो बस के साइड पे लिख देते हैं कि ये एक ग्रिड स्टेशन है और वहाँ पे जो वोल्टेज है वो स्टेप डाउन हो रही है फ्रॉम 220 टू 130 और 500 टू 220 और 132 समथिंग लाइक दैट, 132 टू 11। तो ये जो है ना, इसलिए हम ग्रिड स्टेशन की रिप्रेजेंटेशन या बस बार जो है ना वो उसके साथ वहाँ पर वैसे होती है। जनरेटिंग स्टेशन पे एक ही बस बार होती है, मतलब होती तो काफ़ी सारी है, लेकिन हम अगेन वो सबका क्यूमुलेटिव इफेक्ट एक पे आता है, तो वो हम उसको एक ही, मतलब ये नहीं होता क्योंकि जेनेटिक स्टेशन पे लाइन एंटर तो नहीं हो रही होती, जेनेटिक स्टेशन से तो लाइन आपकी लीव ही कर रही होती है। तो जब वो लीव कर रही होती है तो लीव के ऊपर एक आपके पास बस बार बनी होती है, तो हर लाइन के लिए बस बार होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, उन बस बार को क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखते हैं उन सब का, तो फिर इसलिए हमें एक वहाँ पे तो इतना इशू नहीं है रिप्रेजेंट करने का। ग्रिड स्टेशन पे आपके माइंड में आ सकता है कि यार हम जब एंटर हो रहे हैं जब भी एक बस बार होती है, जब हम लीव करते हैं फिर भी एक बस बार होती है, सर ने ग्रिड स्टेशन को एक ही बस बार से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न मैंने आपको बता दी कि ग्रिड स्टेशन के दरमियान पावर में कोई चेंज नहीं आ रहा होता, ओनली वोल्टेज और स्टेप डाउन फ्रॉम वन वोल्टेज लेवल टू अदर वोल्टेज लेवल। सो दैट इज़, क्योंकि हमें वो सिंगल लाइन डायग्राम बना रहे हैं तो वो हर एक बात की इन्फॉर्मेशन लेकर आनी है हमें, लेकिन ये नहीं है कि हर बात को हमें ड्रॉ भी करना है वहाँ पे। तो इन्फॉर्मेशन आ जाती है और इन्फॉर्मेशन इनफ होती है काम करने के लिए। यस सर क्वेश्चन, यस यस। सर अभी सपोज हमारे पास दो लाइंस एंटर हो रही हैं ग्रिड स्टेशन में और हर लाइन के 3 फेज हैं, तो उन सब को हम एक ही बस बार से कनेक्ट करेंगे। प्रैक्टिकली एक से नहीं करते, प्रैक्टिकली एक से नहीं करते, लेकिन जब आप ठीक, उसको फिगर में ड्रॉ करते हैं तो एक से करते हैं। ठीक। मतलब इट प्रैक्टिकली एक से नहीं करते हैं, मतलब आप अगर आपके पास ग्रिड स्टेशन है तो जो आपकी 3 लाइंस आ रही हैं, तो वो 3 लाइंस एक बस बार पे आएंगी, इसी तरह द अदर 3 विल बिकम द अदर बस बार। लेकिन क्या होगा कि ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकली ग्रिड स्टेशन के ऊपर ऐसे हो रहा होता है। लेकिन अगेन हम जब उसको स्टडी करना है हमने, क्योंकि यहाँ तो हमें स्टडी करना है ना इस कोर्स के अंदर, ये पेपर्स में जो इंजीनियर्स हैं वो स्टडी करते हैं, वो अब ये अफोर्ड तो नहीं कर सकते कि जनाब उसको अब यहाँ पे, जैसे मैं आपको बताऊँ कि इसको मैं ड्रॉ करके बताता हूँ आपको कि अब फॉर एग्जांपल ये एक ग्रिड स्टेशन था, सॉरी, ये ग्रिड स्टेशन है और इसमें लाइंस एंटर हो रही हैं। एक ग्रिड स्टेशन में तो काफ़ी लाइन, कभी 3 4 5 लाइन, बड़े ग्रिड स्टेशन होते हैं 4 लाइंस एंटर हो रही होती हैं, बड़ी लाइंस एंटर हो रही होती हैं। तो अब क्या मतलब, अब वो क्या एक ही बस, ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल ये रवात ग्रिड स्टेशन है, मैं आप बनाता हूँ आपके सामने, ये रवात ग्रिड स्टेशन, ठीक है। अब रवात ग्रिड स्टेशन में एक लाइन आ रही है मंगला से, ये लाइन मंगला से, एक लाइन आ रही है, 2 लाइन आ रही हैं तरबेला से, एक लाइन आ रही है नीलम झेलम से,
एक लाइन आ रही है काला शाखा को, ठीक हो गया, जा भी वैसे वही रही होती है। अब ये तीनों लाइंस हैं, ये अपनी अपनी बस बार पे आएगी, ये लाइन अपनी बस बार पे एंटर होगी, ये एक बस बार है, 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 और यहाँ पे एक और बस बार होगी, ये लाइन अपनी बस बार पे आएगी, ये लाइन भी अपनी बस बार पे। नाउ इज दिस थिंग what I can say that an intelligent decision, it will be an intelligent decision कि आप जितनी लाइन आई हैं, यानी कि आप रवात ग्रिड स्टेशन को अब जब आप इसको ड्रॉ करें रवात को, तो हम उसको ड्रॉ करें इस तरह कुछ, ये पावर सिस्टम रिप्रेजेंटेशन के अंदर रवात ग्रिड कुछ इस तरह का ड्रॉ हो, एक लाइन ये आई थी, एक लाइन ये आई, एक लाइन ये आई, एक लाइन ये आई। विल दिस बी एन इंटेलिजेंट डिसीजन? नो। आप क्या करते हैं कि यार व्हाट इज द रीज़न कि आप मतलब रवात को 5 बस बार से रिप्रेजेंट करें? रिप्रेजेंटेशन है ना बेसिकली, प्रैक्टिकली तो ऐसे ही है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन में आप क्या करते हैं, हम एक बस बार बनाते हैं, अब उसके अंदर हम 5 लाइन्स को एंटर करा देंगे, 1 2 3 4 5, और दीज आर द 5 लाइन्स। अब एक को हम कनेक्ट कर देंगे जाके तरबेला 1 से, एक को हम कनेक्ट कर देंगे तरबेला 2 से, ठीक है, एक को हम कनेक्ट कर देंगे मंगला से, एक को हम कनेक्ट कर देंगे नीलम जलम से, एक को हम कनेक्ट कर देंगे यहाँ से ले जाके काला शाखा को KSK से। समझ आइए मेरी बात? यस सर, समझ आइए। ये वो लाइन है जो एंटर हो रही है। अब इसी तरह लाइन लीव भी तो करती है ना यहाँ से। अब पूरा हुआ काम, यहाँ पे आपका ट्रांसफार्मर आ गया, मतलब मैं क्या बात है, स्टेप डाउन हो गया, वोल्टेज 220 बन गया। अब इसके लीविंग एंड पे यहाँ पे फिर बस आती है, फिर आपके पास आपको यहाँ पे आया, फिर एक बस आई, फिर यहाँ पे नाउ देयर इज अ बस। इसी तरह बसेज आपकी एंड पे। और बड़े ग्रिड स्टेशन जो होते हैं इनमें जो एंटर होती हैं वो कम बसेज होती हैं और लीव ज़्यादा बसेज करती हैं, बिकॉज वोल्टेज लेवल डाउन हो जाता है और आपकी लाइन ज़्यादा जगहों पे जा रही होती है। आप सिमिलरली इसी तरह लीव के लिए भी वही बस यूज होगी, बस फर्क क्या होगा कि अब यहाँ से ये लाइन आना चाहिए, इसी बस से अब लीव करें, ये लाइन जा रही है जनाब कायदे आजम ग्रिड स्टेशन, कायदे आजम यूनिवर्सिटी के क्यू कायदे आजम यूनिवर्सिटी। ये लाइन जा रही है जनाब आपकी संगजानी, ये लाइन आपकी जा रही है आप इधर ले आए इसे कोहिनूर, ये लाइन आपकी जा रही है जनाब स्टेडियम में, कुछ भी आपको नाम, ये लाइन आपकी जा रही है DHA 5, मतलब देयर कुड बी नंबर ऑफ लाइन। ये लाइन आपकी जा रही है चकवाल, ये लाइन आपकी जा रही है, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। बस वही है जो एंटर, जो एक साइड से जो एंटर वाली होती है वो एक साइड से आपको नजर आ रही होती है, जो लीव कर रही होती है दूसरी साइड से नजर आ रही होती है। फॉलो कर रहे हैं आप? ये रवाद, ये पूरा का पूरा रवाद ग्रिड हो गया, ये रवाद। यस सर, एक और क्वेश्चन था कि जैसा कि आपने स्टार्ट में बताया कि जो हमारे पास ये लाइंस होती हैं, ये क्या कहते हैं, इनमें फेज शिफ्ट होता है, तो जब ये 3 फेज एक ही बस बार पे आते हैं तो उसका इफेक्ट नहीं होता? यार वो बैलेंस है ना, वो बैलेंस है ना एक दूसरे के साथ, 120 डिग्री अपार्ट का मतलब बैलेंस फेज में। आप लोगों की जो है ना अनफॉर्चुनेटली जो बेसिक्स है ना बहुत वीक हैं। ये सारी बातें तो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में स्टूडेंट से पढ़ी होती हैं, जो क्वेश्चन अब आपने मुझसे किए। ये बैलेंस है ना, बैलेंस की तो यही बात है, इनका एक दूसरे पे इफेक्ट हो सकता है अगर ये बैलेंस ना हो। मतलब ये कि अभी ये इस तरह है, कोई भी सेट ऑफ फेजर बैलेंस होने की उनकी निशानी होती है। एक सेट ऑफ फेजर जो है, ये सेट ऑफ फेजर है पावर सिस्टम का, 3 फेजर है। When we want it to be a balanced phasor, there are 3 things. One कि उनका मैग्नीट्यूड बराबर हो, यानी कि इसका भी 1 पर यूनिट मैग्नीट्यूड है, इसका भी और इसका भी। इट मीन्स पहली शर्त तो पूरी हुई, पहली कंडीशन हैज़ बीन फुलफिल्ड, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए इनका।
तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक हो गया। सेकंड कंडीशन क्या होती है? दे शुड हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ 120 डिग्री। दे शुड हैव अ सेम फेज डिफरेंस। चलें आप ये कह दें कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और उनका फेज डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। अब आपके पास एक सेट ऑफ फेजर है। आपको पता है कि जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये कितने डिग्री के होते हैं? 0 से लेके कितने डिग्री तक होते हैं? 360 डिग्री। हाँ 360 डिग्री ना। ये 0, ये 90, ये 180, ये 270 और ये 360। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक होता है टोटल 360। फेजर कितने होते हैं आपके पास? टोटल कितने फेजर होते हैं? कितने फेज सिस्टम होता है यार आपका? परेशान ऐसे हो जाते हैं। कितने फेज सिस्टम है? 3 फेज। अब 3 3 फेज फेजेस हैं। सिस्टम होता है। अब 3 फेज सिस्टम है। अगर इन तीनों के दरमियान फेज डिफरेंस सेम रखना चाहते हैं हम तीनों फेजेस के दरमियान और वाई बी के दरमियान, इफ वी वांट टू कीप द फेज डिफरेंस व्हाट इक्वल और सेम, तो टोटल हमारे पास कितना है? 360। तो 360 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा ना 3 पे। तो कितना बन गया? 120 डिग्री। सो द कंडीशन इज दिस कि इनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए फर्स्ट, सेम। सेकंड कंडीशन क्या? इनका फेज डिफरेंस जो है तीनों फेजेस का क्या फेज डिफरेंस जो है पी डी, दिस शुड ऑल्सो बी सेम। सेकंड कंडीशन ये है। और थर्ड कंडीशन है कि इनका जो सीक्वेंस है वो पॉजिटिव सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है ना? पॉजिटिव सीक्वेंस होना चाहिए। और सीक्वेंस में आपको अभी आपको समझ नहीं आएगी। सीक्वेंस में आपको 10th चैप्टर में जाके समझाऊंगा। ठीक है? तो अब आप ये देखें इनका, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, इनका फेज डिफरेंस आपस में सेम होगा और वो कितना होगा? 120 डिग्री होगा। तो इट मीन्स दैट दे आर द बैलेंस सेट ऑफ फेजर्स। जो बैलेंस सेट ऑफ फेजर्स होते हैं, बिकॉज दे आर 3 फेज, तो वो एक दूसरे को खुद ही से बैलेंस कर रहे होते हैं। उनको आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड द सिस्टम इज इन बैलेंस कंडीशन देन। अगर इन तीनों के दरमियान एंगल डिफरेंस 120 डिग्री नहीं रहेगा, इन तीनों फेजेस के दरमियान ये जो लाइन जा रही होती है, कोई भी ट्रांसमिशन लाइन जा रही है जो कि आगे बस पर लग रही है, अगर इन 30 फेजेस के दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो 120 डिग्री नहीं रहेगा, तो देन इट विल बी हैव एन इम्पैक्ट ऑन बस बार और देयर विल बी अ फॉल्ट, समथिंग लाइक दैट। देन देयर विल बी डिफरेंट इफेक्ट्स। So as long as the phase difference between all these phases is 120 degree and their magnitude is also same, this means that this is a balanced set of phasor and it will be operating in a balanced condition. मेरी बात समझ आ गई आपको? यस सर, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। अच्छा चलें, तो फिर ये तो हमारा बैलेंस है। अब आपको ये भी मैंने बता दिया कि भाई हम सिंगल लाइन डायग्राम क्यों बनाते हैं और सिंगल लाइन डायग्राम बनाने के लिए पावर सिस्टम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमें सिंगल लाइन डायग्राम के अंदर उसको हमें बनाना पड़ता है। तो ठीक है, आप ये देखें, मैं आपको एक सिंगल लाइन डायग्राम आपसे शेयर करता हूँ, तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या बातें कर रहा था। देखें, जो पाकिस्तान का पावर सिस्टम है ना, एनटीडीसी नेटवर्क, ये थोड़ा सा पुराना अभी फिगर मैंने लगाई हुई है। ये थोड़ी सी ओल्ड पिक्चर है, अभी ये थोड़ा सा दोबारा चेंज हो गया है। रीज़न ये है कि यहाँ से मुटियारी से एक लाइन ना इधर से, वो लाइन यहाँ आ चुकी है, लाहौर में आ गई है, एचवीडीसी की लाइन है और कुछ लाइंस और ऐड हुई हैं अदरवाइज। लेकिन ये है कि मैंने आपको समझाने के लिए भी बता रहा हूँ कि अगर आप ये देखें तो जो रेड कलर से आपको
नज़र आ रहा है सिस्टम, ये वाला रेड कलर से, ये 500 किलो वोल्ट ट्रांसमिशन नेटवर्क है, 500 केवी की लाइंस हैं। और ये जो आपको रेड कलर से इस तरह के बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, तो ये बेसिकली 500 किलो वोल्ट ग्रिड स्टेशन है। और ये जो ब्लू कलर से आपको नज़र आ रहे हैं डॉट्स, ब्लू कलर से डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली ग्रिड स्टेशन है 220 किलो वोल्ट के। और ये जो ब्लू कलर से लाइन नज़र आ रही है, ये आपकी 220 किलो वोल्ट की लाइन है। अब ये हमारा इतना कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, और अभी और बहुत सारा कॉम्प्लेक्स हो गया है ये। तो इस नेट अब ये जो एक एक लाइन है, ये जो एक लाइन है, ये 2 लाइन है, ये 3 लाइन है, बेसिकली ये 3 फेजेस नहीं है। ये एक लाइन है जो कि लाहौर से आ रही है और कनेक्ट हो रही है इधर आके कोटा मुजफ्फरगढ़ में। इसी तरह फिर एक लाइन है जो कि कैप्को में जाती है, कोटा पावर कंपनी में, और वो फिर कनेक्ट करती है 220 केवी के साथ। इस तरह फिर एक लाइन है जो कि आपकी 500 केवी की गुद्दू से आ रही है, मुजफ्फरगढ़ से ज्वाइन करती है, मुजफ्फरगढ़ से फिर लाहौर जाती है, ये गट्टी, और गट्टी में फिर लाहौर जाती है। और फिर ये रवात है यहाँ पे, ये देखें न्यू रवात, ये रवात, रवात में देखें एक लाइन आपका इधर से आ रही है, कालाशाह काकू से एक लाइन जा रही है 500 केवी की, रावी से, सॉरी, कालाशाह काकू से नहीं जा रही, कालाशाह काकू से भी जा रही है लेकिन 220 केवी की जा रही है। और फिर यहाँ पे देखें मंगला है, मंगला से भी एक लाइन जा रही है, ये जो ग्रीन कलर का है ना मंगला, इधर से भी एक लाइन जा रही है जो कि आपकी 220 किलो वोल्ट की लाइन रवात में जाती है। और यहाँ से फिर रवात में एंटर भी हो रही है, एक तरबेला से आ रही है रेड कलर की लाइन, देखें आप। इसी तरह गाजी बरोथा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है यहाँ पे ना, गाजी बरोथा कोई नज़र है, जीपी के नाम से होगा यहाँ पे, मेरा ख्याल ये है। तो ये गाजी बरोथा से लाइन भी आएगी यहाँ पे। इसी तरह फिर आपके पास ये मर्दान में एक लाइन जा रही है पेशारपुर 500 केवी और 220 केवी। सो देखिए ये हमारा जो है ना अभी एक, मतलब अभी तो खैर इससे और ज़्यादा लाइन एंटर हो गई हैं, लेकिन आज से आप समझें कि 5-6 ईयर्स बैक जो हमारा ट्रांसमिशन नेटवर्क था ना, वो कुछ इस तरह का था। अब ये ऐसा तो नहीं कि ये इस ट्रांसमिशन नेटवर्क की रिप्रेजेंटेशन है ये सिंगल लाइन डायग्राम, लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि एक्चुअली जो नेटवर्क्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं ना। अब इस नेटवर्क को आपने रिप्रेजेंट करना है सिंगल लाइन डायग्राम से, तो सिंगल लाइन डायग्राम से हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिएगा कि ये एक बस बार है और ये एक बस बार है, ठीक है। ये एक जनरेटिंग स्टेशन है, यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक एक जनरेटिंग स्टेशन है, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक जनरेटिंग स्टेशन है। ये जो है ना जनरेटर, यहाँ तक उसकी रिप्रेजेंटेशन, जनरेटर बस से कनेक्टेड है, बस के बाद फिर आपके पास एक ट्रांसफार्मर आया है, जनरेटर ने जो वोल्टेज प्रोड्यूस किया आपको पता है वो कम होते हैं। ये जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है यहाँ पे लगा हुआ, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ये आपकी जो है ना वोल्टेज को इंक्रीज कर देता है 220 किलो वोल्ट, 500 किलो वोल्ट, और फिर आपके पास बस बार आ जाती है। ये देखें दरमियान में सर्किट ब्रेकर लगा हुआ। सिमिलरली यहाँ पे भी एक जनरेटर है, बस बार है, वोल्टेज प्रोड्यूस हुए और उसने स्टेप अप किया, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। वो ट्रांसफार्मर जो जनरेटिंग स्टेशन पे लगा होता है वो ट्रांसफार्मर होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ऑल अदर ट्रांसफार्मर्स इन अ पावर सिस्टम आर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सो बी केयरफुल कि वो ट्रांसफार्मर जो कि आपके जनरेटिंग स्टेशन पे इंस्टॉल्ड होते हैं उनका पर्पस होता है वोल्टेज को स्टेप अप करना, और वो ट्रांसफार्मर्स जो कि आपकी ग्रिड स्टेशंस पे, सब स्टेशंस पे इंस्टॉल्ड होते हैं, उन सब का पर्पस होता है वोल्टेज को स्टेप डाउन करना। So as this generator, transformer is installed at grid generating station, as it is attached with the generator, so its purpose is to step up the voltage. Similarly here, G1, this generator, and here यहाँ पे इसके साथ ये एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ, तो इस ट्रांसफार्मर का पर्पस भी स्टेप अप करना है। आपने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर पैराडाइज कैफे के साथ देखा है डीजल जनरेटर लगा हुआ है बहुत बड़ा, हैव यू सीन दैट? यस सर। अच्छा, अगर आपने वो डीजल जनरेटर देखा हो तो उस डीजल जनरेटर के बाहर एक ट्रांसफार्मर भी है बहुत बड़ा लगा हुआ, इतना बड़ा तो नहीं है लेकिन ट्रांसफार्मर पड़ा हुआ वहाँ। यस सर, देखा हुआ। वो जो ट्रांसफार्मर है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है,
वैसे तो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जितने ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं वो स्टेप डाउन, उस ट्रांसफार्मर के अलावा आपकी यूनिवर्सिटी में जितने भी ट्रांसफार्मर्स हैं वो सारे के सारे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स हैं। बट वो जो ट्रांसफार्मर है जो कि वहाँ पे बना हुआ है, जो पड़ा है, वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। क्योंकि आपके जो जनरेटर के प्रोड्यूसिंग वोल्टेजेस हैं, आई थिंक वो 6.6 हैं या 6.8 वोल्ट किलो वोल्ट पे प्रोड्यूस करता है। नहीं सॉरी, इस जनरेटर के वोल्टेज प्रोडक्शन है वो 220 वोल्ट और 440 वोल्ट, 440 नहीं होता सॉरी, 400 वोल्ट। तो सिंगल फेज 220 वोल्ट और थ्री फेज 400 वोल्ट, ये जो जनरेटर लगा हुआ है आपका डीजल जनरेटर, ये इतने वोल्टेजेस प्रोड्यूस करता है। फिर क्या करते हैं हम इसके आगे, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है हमने। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, इन वोल्टेजेस को स्टेप अप करता है 11,000 वोल्ट्स पे, 11 किलो वोल्ट पे। और 11 किलो वोल्ट पे इसको स्टेप अप करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, इस वोल्टेज को या इस पावर को जो कि हमारी ये डीजल डीजी सेट में जो प्रोड्यूस होती है, इसको हम फीडर के साथ, जो हमारी यूनिवर्सिटी का मेन फीडर है, उसमें हम कनेक्ट कर देते हैं। तो जब आपकी यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो क्या होता है, ये डीजल जनरेटर चलता है उसके बाद। ये डीजल जनरेटर से जो पावर प्रोड्यूस होती है उसका वोल्टेज लेवल तो 220 वोल्ट और 400 वोल्ट है। तो फिर क्या करता है, ये जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसको स्टेप अप कर देता है 11 किलो वोल्ट पे, ताकि आपके मेन फीडर में चला जाए। जब मेन फीडर में जाता है तो मेन फीडर से होता हुआ, अगर हमने वो पावर यूज़ करनी है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, तो ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से बाहर निकले राइट साइड पे पैराडाइज कैफे के अगेंस्ट सामने, वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जहाँ पे नीचे अक्सर कार्स वगैरह भी खड़ी होती हैं, मेरा ख्याल एक या दो ट्रांसफार्मर हैं। वो ट्रांसफार्मर फिर उस 11 केवी को फिर स्टेप डाउन करते हैं 220 और 400 वोल्ट में। इसी तरह वो फीडर आगे लेके जाता है उसी पावर को 11 किलो वोल्ट की बेस पे। और फिर आप जब कैफ़े के सामने पहुंचते हैं, वहाँ पे भी उस रोड के ऊपर भी हो सकता है एक ट्रांसफार्मर हो। सिमिलरली जब उसको और आगे जाता है तो कहीं वहाँ पे हॉस्टल्स या मस्जिद या मॉस्क के पास कहीं वहाँ पे ट्रांसफार्मर हो। तो फिर वो 11 किलो वोल्ट को बाद में ये जो ट्रांसफार्मर्स ऑल अराउंड इन द यूनिवर्सिटी इंस्टॉल्ड हैं, ये उसको स्टेप डाउन करते हैं इन 220 वोल्ट और 400 वोल्ट के अंदर। तो ये जो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्रांसफार्मर प्लेस है आपके डीजी सेट के साथ जो लगा हुआ है यूनिवर्सिटी के अंदर, ये जनरेटिंग स्टेशन के साथ ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो जो ट्रांसफार्मर जनरेटिंग स्टेशन, यानी कि डीजी सेट आप अपना समझेंगे यूनिवर्सिटी का एक जनरेटिंग स्टेशन है छोटा सा, तो जो ट्रांसफार्मर जनरेटिंग स्टेशन पे इंस्टॉल्ड होता है वो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। और ऑल अदर ट्रांसफार्मर इन अ सिस्टम दे आर ऑल स्टेप डाउन ट्रांस। सो ये जो ट्रांसफार्मर यहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और ये भी स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ये जनरेटर है, ये भी जनरेटर है, ये बस बार है, ये बस बार है, ये जनरेटर की बस है और ये आपकी मेन बस बार है। ये जो आपका सिंबल है आपका बेसिकली सर्किट ब्रेकर का सिंबल है। लाइन जब भी एंटर होती है बस बार के ऊपर तो सर्किट ब्रेकर के थ्रू होती है, और जब लीव करती है तो फिर भी सर्किट ब्रेकर के थ्रू करती है। तो ये एक आप समझें कि एक 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 आप स्टैंडर्ड। अच्छा, फिर आप ये देख रहे होंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे कि कुछ वैल्यूज अजीब अजीब आपको नजर आ रही होंगी। कैसी अजीब अजीब नजर आ रही होंगी, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट। आप कह रहे होंगे यार ये कौन से, ये लाइन है। आपको पता है कि जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, कोई भी लाइन होती है कंडक्टर, कंडक्टर की क्या होती है बताइएगा। कंडक्टर कोई आपके पास हो तो उस कंडक्टर की कोई इम्पिडेंस या कोई रेजिस्टेंस होती है, एग्री। यस यस सर। सर। अब अगर आपके पास एक कंडक्टर है
Yes, students, can you hear me now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, students, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. चलो दैट्स गुड। अच्छा, बात हम कर रहे थे इसकी, इंटरनेट डिस्कनेक्शन हो गया था यहाँ पे। तो देखिए, मैं आपको बता रहा था कि ये सिंगल लाइन डायग्राम, अगर आप पाकिस्तान के सिस्टम को देखें तो मैंने आपको बताया कि वो इस तरह का सिस्टम है। हाँ, फिर मैं आपको ये बता रहा था कि आप ये देखें कि इनकी वैल्यूज़ जो है ना, वो आपको काफ़ी छोटी-छोटी वैल्यूज़ लग रही होंगी पॉइंट्स पे, समथिंग लाइक 0.05, 0.15, 0.6, 1.05, 1.2, 1.5, नॉट मोर देन दैट। हाँ, कुछ 1 के आसपास की वैल्यूज़ होंगी, कुछ 1 से थोड़ी ज़्यादा होंगी, कुछ 1 से थोड़ी कम होंगी। तो ये जो वैल्यूज़ हैं, ये इनकी एक्चुअल वैल्यूज़ तो नहीं है। अब ट्रांसमिशन लाइन की अब एक लाइन है और इतना बड़ा कंडक्टर है और 3 फेज़ लाइन है वो, और उसका जो डिस्टेंस है वो है तरबेला से फॉर एग्जांपल रवात, या तरबेला से फॉर एग्जांपल काला शकाकू, या रावी ग्रेड स्टेशन लाहौर। तो इतनी बड़ी लाइन 280 किलोमीटर बड़ी कंडक्टर है और वो भी 3 फेज़ कंडक्टर है, तो क्या उसकी जो इम्पीडेंस है वो 0.6 जे होगी।
ऐसा नहीं है। अच्छा, इसी तरह क्या उसकी इम्पीडेंस जो है ट्रांसफार्मर जो वहाँ पे इंस्टॉल्ड है उसकी इम्पीडेंस सिर्फ 0.15 होगी, या जनरेटर की जो इम्पीडेंस है वो 0.05 होगी, सिंपल। अच्छा, और इसके साथ आप ये नोट करें कि यहाँ पे इन्होंने इसके साथ कोई यूनिट नहीं लिखा। फॉर एग्जांपल J 0.6 ओम्स नहीं लिखा इम्पीडेंस का यूनिट, या अगर आप वोल्टेज की वैल्यू को नोट करेंगे तो आपको 1.05 वोल्ट या 1 वोल्ट नज़र नहीं आएगा। इसी तरह करंट की वैल्यू के साथ आपको एम्पियर्स का यूनिट नज़र नहीं आएगा। इसी तरह आपको जो पावर की वैल्यूज होंगी उनके साथ किलो एम्पियर्स या एमवीएस या मेगा वोल्ट एम्पियर नज़र नहीं आएगा। तो ये जो चीज़ें, ये जो है ना, आपको मैं जो बातें कर रहा हूँ, बेसिकली दीज क्वांटिटीज आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ पर यूनिट. These quantities are written in the form of per unit to basically simplifying the calculations that are involved in power system analysis. So per unit को भी हम डिस्कस करते हैं क्योंकि आज के कोर्स का वो भी हिस्सा है। तो बस पहले कंक्लूड कर लेते हैं सिंगल लाइन डायग्राम को। देखें पाकिस्तान का सिस्टम ये था, ठीक है, तो उसकी सिंगल लाइन डायग्राम देखें, ये बनी हुई है। ये 500 kV ग्रिड जो नेटवर्क है हमारा, रेड कलर से आप देख सकते हैं उसे, और जो हमारे पास हमारा 220 kV का जो नेटवर्क है वो आप ग्रीन लाइन से देख सकते हैं। तो शाम मोहम्मदी पेशावर देखें, इसी तरह तरबेला है, तरबेला से जो लाइन है वो कहाँ जा रही है, एक लाइन आपकी इधर आई है और फिर आपकी एक लाइन जा रही है, वो गट्टी जा रही है 500 kV की, और फिर तरबेला, ये देखिए तरबेला से एक लाइन जा रही है गट्टी, तरबेला से दूसरी लाइन जो जा रही है वो भी गट्टी जा रही है, तरबेला से तीसरी लाइन भी गट्टी जा रही है, तरबेला से एक लाइन ये देखें यहाँ पे आ रही है आपकी, मेरा ख्याल है ये तरबेला, ये 278 वाला है ना ग्रिड सेक्शन। अच्छा, वो जो लाइन आपकी गट्टी जा रही है उधर से ये आपकी लाइन आप देखिएगा कि एक रवात में आ रही है, ये न्यू रवात है। तरबेला की ये लाइन जो गट्टी जा रही है आगे कंटिन्यू हो रही है, वो पहले रवात में आती है, रवात में स्टेप डाउन होती है और 220 किलोवोल्ट की बन जाती है और बुरहान ग्रिड स्टेशन जाती है, संजानी में भी जाती है, ठीक है। ये संजानी ग्रिड स्टेशन है, ये बुरहान ग्रिड स्टेशन है। अभी इधर आपको नज़र नहीं आ रही होगी वो वाली जो है ना कायद आज़म यूनिवर्सिटी ग्रिड स्टेशन, क्योंकि वो नया बना तो इसलिए बुरहान और संजानी नज़र आ रहा है सर। इसी तरह गाजी बरोथा से डायरेक्ट लाइन जो है वो 220 kV किलोवोल्ट की, वो भी बुरहान में आती है। और यही देखें तरबेला से फिर काला शाखा को भी जाती है लाइन। ये तो इस तरह ये देखें सारे जनरेटिंग स्टेशन हैं और ग्रिड स्टेशन हैं। तो ये जो रेड कलर से आपको नेटवर्क नज़र आ रहा है ये सारे का सारा जो है ये आपका 500 किलोवोल्ट का है, और जो आपको ग्रीन कलर से नज़र आ रहा है ये आपका जो है ये 220 किलोवोल्ट का नेटवर्क है। सो ये, और ये उसकी क्या सिंगल लाइन डायग्राम है। तो अब आपको आई होप कि समझ आ रही होगी कि सिंगल लाइन डायग्राम क्या होती है। अब आप इसको फर्दर देखेंगे, पाकिस्तान का जो 1992 में जो नेटवर्क था, ट्रांसमिशन नेटवर्क जो था हमारा, वो 77 बस था, यानी कि उसके अंदर कितनी बसेस थी, 77 बसेस थी। अब अगर आप इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरह ये छोटी छोटी जितनी बसेस बच जाएगी, टोटल 77 बस सिस्टम बनता है। और इसमें कुछ रेड कलर की बसेज हैं, कुछ ब्लू कलर की बसेज हैं। जो रेड कलर की बसेज हैं अगेन दे आर 500 किलोवोल्ट ग्रिड स्टेशन आर जनरेटिंग स्टेशन। जो ब्लू कलर की बसेज हैं दे आर 220 किलोवोल्ट ग्रिड स्टेशन आर जनरेटिंग स्टेशन। सो आई होप कि आपको समझ आई होगी कि अब देखें सिंगल लाइन डायग्राम में क्या है कि ये जनरेटर इंस्टॉल्ड है, जनरेटर के बाद ट्रांसफार्मर है वो दूसरे बस के साथ इंस्टॉल्ड है, वो बस आगे लोड बस के साथ इंस्टॉल्ड है। तो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ अ होल पावर सिस्टम। तो देखो अब पाकिस्तान का पावर सिस्टम तो वैसे तो पूरे पाकिस्तान पे इट इज स्कैटर्ड और पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है, लेकिन अगर आप चाहें तो उसको एक पेज के ऊपर इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें पूरे पाकिस्तान का पावर सिस्टम ड्रॉ हो गया है, और अब आप ये देख सकते हैं इजीली कि अब लाइन इसमें तरबेला भी आ रहा होगा, मंगला भी आ रहा होगा, और सारे का सारा एक पेज के ऊपर आ गया। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है सिंगल लाइन डायग्राम का या सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर सिस्टम का, के बजाय इसके कि हम पूरे नेटवर्क को कैसे अंडरस्टैंड करें, इतना बड़ा नेटवर्क है, हम उसको एक पेज या एक फिगर के अंदर ड्रॉ कर लें, सो दैट कि हम उस लाइन की या उस पूरे नेटवर्क की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास एक ख़ास जगह पे हमारे सामने आ जाए, और फिर हम उसके ऊपर कोई भी कंप्यूटेशन, कैलकुलेशन, एनालिसिस करना चाहते हैं
या उसके अंदर कुछ चेंज करके कुछ न्यू प्रपोज करना चाहते हैं, या कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर एक्सपेंशन करना चाहते हैं, तो हम इजीली उसको कर सकें। तो ये काम हम पावर सिस्टम एनालिसिस कोर्स के अंदर करेंगे और इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग फॉर यू। हम इसके अंदर सिंगल लाइन डायग्राम्स बनाएंगे। हम इस कोर्स के अंदर सिंगल डायग्राम्स के अंदर अल्ट्रेशंस करेंगे। हम इस कोर्स के अंदर कुछ न्यू पावर प्लांट्स इंस्टॉल करेंगे, कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग को सिस्टम से निकालेंगे, कुछ नई लाइंस को ऐड करेंगे, कुछ ओल्ड लाइंस को उससे निकालेंगे। और ये सब करने के लिए हम कुछ सॉफ्टवेयर टूल्स यूज़ करेंगे। मतलब 1 2 3 4 बसेस के लेवल तक तो हम उसको ऑन द पेपर सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स को, और जब आपकी नंबर ऑफ बसेस मोर देन 3 या 4 हो जाएंगी तो फिर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ऑन द सॉफ्टवेयर। तो आपको सॉफ्टवेयर सिखाए जाएंगे, सॉफ्टवेयर समझाए जाएंगे, स्पेशली इन द लैब्स। और उन लैब्स के अंदर आप सिंगल लाइन डायग्राम्स बनाएंगे, लैब्स के अंदर आप उनका एनालिसिस करेंगे, अपना सिस्टम जो ड्रॉ करेंगे सिंगल लाइन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट के अंदर, और फिर उसके ऊपर अपनी जो आउटकम्स हैं उन आउटकम्स को बेसिकली डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि जो रिजल्ट्स आपके पास आए हैं व्हाट दे एक्चुअली मीन, कि कितनी पावर इस वक्त तरबेला से अरवात में जा रही है, कितनी पावर आवाज़ से रावी ग्रिड स्टेशन में जा रही है, कितने लॉसेज आ रहे हैं सिस्टम के अंदर, इन लॉसेज की रीज़न क्या है। अगर हम कोई नया पावर प्लांट लेकर आते हैं तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम जो पाकिस्तान का है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लाइंस के ऊपर पावर फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, लॉसेस बढ़ जाएंगे, लॉसेस कम हो जाएंगे, वोल्टेज जो है वो कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये सब बातें देखने के लिए आपको उसका एनालिसिस करना पड़ता है, और वो एनालिसिस हम इस कोर्स के अंदर करेंगे। आई होप कि आपको समझ आई होगी मेरी बात। ठीक है, तो अब हम अपने कोर्स की दूसरे फेज़ की तरफ चलते हैं, और वो ये है कि ये जो पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंगल लाइन डायग्राम तो हमें समझ आ गई कि एक आपने फिगर बनानी है अपने पावर सिस्टम को देखते हुए, ये जो भी आपको पावर सिस्टम गिवन हो उसकी आपने सिंगल लाइन डायग्राम या सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन करनी है, उसको हम कहते हैं सिंगल लाइन डायग्राम। अब इस सिंगल लाइन के ऊपर जैसे अब आप यहाँ पे देखें कि आपको जो जनरेटर्स गिवन है, देखें 600 MVA, 450 MVA, 450 MVA का जनरेटर, मतलब आप सोच पा रहे हैं ना कि 450 MVA कितनी बड़ी क्वांटिटी अमाउंट होती है या कितनी बड़ी पावर है। 800 मेगावाट्स मंगला आ रहा है। इसी तरह 450 MVA के 3 जनरेटर्स, 450 MVA के 3 जनरेटर्स, 1450 मेगावाट का एक सेटअप। सो ये जो है ना बहुत बड़ी पावर्स हैं 450 MVA, 220 किलोवोल्ट यानी कि 220,000 वोल्ट्स। 500 kilovolt means actually that 500,000 volts. So these are huge amount of voltages and huge amount of powers. So इनको आपस में मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, और एक किसी बस के लिए तो इजी होता है, लेकिन अगर आपका जो सिस्टम है बड़ा हो जाए, जैसे कि पाकिस्तान का अभी यहाँ पे तो शो जो आपको किया गया, ये आपको किया गया 77 बस सिस्टम ना, तो पाकिस्तान का अब सिस्टम तो 150 बस से भी क्रॉस कर चुका है। तो फिर क्या है कि इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें या सिस्टम का एनालिसिस कर सकें। सो टू सिंप्लीफाई वेरियस थिंग्स, द पर यूनिट सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड। अब हम पर यूनिट सिस्टम ऑफ, अच्छा इस तरह करते हैं कि आप 10 मिनट्स की ब्रेक ले लें, तो 10 मिनट्स की ब्रेक के बाद ना हम पर यूनिट सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ताकि आपका माइंड थोड़ा फ्रेश हो पर यूनिट सिस्टम और रिप्रेजेंटेशन अंडरस्टैंड करने के लिए। फाइन, ओके ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। यस सर ये जो आपने सिंगल लाइन डायग्राम बनाई है, इसमें 1 और 2 तो बस बार, ये 3 और 4 भी बस